So these are the three cycles: air, vapor, and vapor compression and vapor absorption. So air refrigeration cycle, these are the facts about the air refrigeration cycle. This is the ideal cycle, which is practically not possible because two processes are slow, two processes are fast, and this is not possible for a single device to change the speed accordingly. Clear? So that is why we have modified to get the Bell-Coleman cycle or reverse button cycle. So this is the cycle, this is the arrangement what we see in the aircrafts for cooling. Yes, sir. So from 1 to 2, this is the compressor. From 2 to 3, it is the air cooler, or it is it is device meant for heat rejection. Yes, sir. का नाम कुछ भी हो, अलग अलग साइकिल में इन डिवाइसेस के नाम बेशक they may be changed, but you should know the basic process, basic cycle. Yes, every refrigeration system should undergo from the 4 processes, that is the compression, heat rejection, expansion, and heat absorption. So the first device is compressor. Now you know what this will do. This will compress the gas. Temperature and pressure will get increased. Then we have the second device, which is here we are calling it as air cooler. This is used for rejecting the heat from the refrigerant. So refrigerant अपनी heat यहाँ से आपकी reject कर देगा बाहर की air में, है ना? बाहर की cooling air दिखाई हमने, यहाँ से in हो रही है, यहाँ से out हो रही है. तो वो जो बाहर की atmospheric air है, उसको अपनी heat energy, ये जो compressed gas है हमारा जो refrigerant है, ये अपनी heat दे देगा. और then next device is expander. This is just the reverse of compressor. अगर आप भूल जाते हैं, देखिए तो आपको ट्रिक बताता हूँ मैं. अगर ये 4 प्रोसेस क्या है भूल जाते हैं, आपको क्या करना है, you just need to remember the first 2 steps. First is your compressor. कंप्रेसर का जस्ट अपोजिट होगा थर्ड, यानी कि और सेकंड स्टेप क्या है आपका, हीट रिजेक्शन, उसका जस्ट अपोजिट होगा फोर्थ, यानी कि हीट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो 3 to 4 here we have the expansion. यहाँ क्या होगा, pressure will get reduced and along with that pressure temperature will also get reduced. तो यहाँ पे हमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मिलेगा पूरी साइकिल का, और वो वेरी लो टेम्परेचर गैसेस वो जाएंगी हमारी एवेपोरेटर में. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, अगेन दिस साइकिल विल रिपीट. So this is the arrangement for air refrigeration cycle. Now my question is कि इसमें वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहाँ है जहां पे ठंडक हो रही है. Here it is. ये ठंडा किस चीज को कम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, भैया जो गैस है हमारे अंदर, ये यहाँ गर्म हो गई, यहाँ कंप्रेस हो गई, गर्म हो गई, यहाँ पे टेम्परेचर हीट रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया. ठीक है, फिर यहाँ आके वापस गर्म हो गई, और फिर ये ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, खुद ही हुए जा रही है. हमें क्या फायदा मिल रहा है इससे, हमारे फल सब्जी इंतजार कर रहे हैं ठंडे होने के लिए, वो कहाँ है, कहाँ है वो, बताया था मैंने आपको एवेपोरेटर में. कहाँ है एवेपोरेटर जो है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस. जो हमारा फ्रिज है ना, फ्रिज घर में, उसमें सबसे ऊपर जहाँ आइस बॉक्स होता है, जहाँ आइस जमती है, उसके ऊपर पीछे ये कॉइल होती है, एवेपोरेटर की कॉइल. यस सर. और बाकी सारी चीजें जो है ना वो फ्रिज के बाहर होती हैं, और एवेपोरेटर जो है ना वो होता है फ्रिज के अंदर. तो एवेपोरेटर के अंदर जब वो ठंडी गैसेस जाती हैं, तो जो फ्रिज के अंदर जो स्पेस है हमारा, वहां की गैस से हीट लेके उसको तो ठंडा कर देती है और खुद गर्म हो जाती है, और फिर जाती है कंप्रेसर के पास. तो यहाँ पे वो हीट एक्सचेंज होता है. चलिए ठीक है, ये इसका देन अगेन यू कैन सी द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम फॉर द सेम. दिस साइकिल इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट्स. इज इट क्लियर? From 1 to 2, yes, it is the compression. 2 to 3, it is the air cooler. 3 to 4, it is the expander, and 4 to 1, it is the evaporator. Evaporator. Now, by using these two graphs,
we can derive the relation for the coefficient of performance. Coefficient of performance. Refrigeration effect upon work done. This is the COP. Yes sir. Output upon input. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? 4:1 एवापोरेटर में. 4:1 evaporator. क्लियर है? इसलिए यहाँ पे है CP T1 minus T2, CP T1 minus T4. T4. और वर्क डन Yes, कहाँ sir. कर रहे हैं अपन? वर्क सप्लाई कहाँ कर रहे हैं? कंप्रेसर में. ठीक है ना? 1 से 2. तो कंप्रेसर में हम वर्क दे रहे हैं और एक्सपांडर में हमें वर्क मिलता है. तो दोनों को माइनस किया, उतना वर्क हमें देना पड़ रहा है सिस्टम को. तो उनसे डिराइव करके रिलेशन निकाला अपन ने, और ये इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आ जाती है फाइनली T1 डिवाइडेड बाय T2 minus T1. T2 minus T1.